Hi guys, welcome to this session. And this is a second session, or you can say follow-up session of inequalities. हमने last session में we have covered like a basics and the important questions, some important questions. So if you haven't watched that session, I would recommend you to watch once. Okay. So ये बताओ कितने लोगों ने ये sheet solve किया है? How many of you have solved this sheet? Because yesterday I shared this sheet in the class itself. So if you have solved, well and good. I will just share with you a answer key. What are the answer? So for the first question, the answer is option C. And I think ये तो हमने solve किया था. And the second is this one, option 4. So you can check this answer key after the solution, like once you get solved the sheet. Then the third one. Okay. So for this, the answer is, I think, if I'm not wrong, 301 is the answer. And we solved this question in the session itself. And for this is 129. So let me first give you the answer. अगर आपको इसमें से किसी में भी डाउट है, do let me know. We'll try to solve this question, that question. जो भी हो बता देना. एक second. And for this one, the question fifth, the answer is option D. That is 151. And for the sixth question, the answer is option C. That is 193. For this ये तो हमने solve किया था session में ही. And क्या था इसका आंसर आया अब something around 9 if I'm not wrong. 9 is the answer for this question. एंड एट्थ वन ये भी हमने सॉल्व कर लिए थे कल ही. एंड द आंसर इज 8. ये मैंने होमवर्क दिया था आपको. नाइन्थ क्वेश्चन वाज होमवर्क. सो क्या आंसर आएगा इस नाइन्थ का जिसने सॉल्व किया है? व्हाट इज द आंसर फॉर नाइन्थ वन? ओके. 16. कूल. करेक्ट वन. करेक्ट दिनेश. द आंसर इज करेक्ट. आंसर फॉर दिस इज 16. चलो मतलब आपने सॉल्व किया सिर्फ. ये तो हमने यहीं पे किया था सॉल्व. एंड आंसर फॉर दिस इज आई थिंक 15. फॉर दिस द आंसर इज 15. 17. ये सॉल्व हुआ आपसे? इज इट? आर यू एबल टू सॉल्व दिस वन? क्या आंसर आया इसका? व्हाट इज द आंसर गाइस? क्या है आपका? ये शायद मैंने सॉल्व करवाया था कल, आई थिंक. राइट, कल ही सॉल्व किया था हमने. यस यस, हमने कल सॉल्व किए थे इसे. आई फॉरगॉट कि मैंने करवाया था. इसका आंसर 11 ही था. आई टोल्ड ऑल्सो कि 11th क्वेश्चन 11 आंसर. हाँ या क्लास में वी सॉल्व दिस क्वेश्चन इन क्लास इटसेल्फ. दिस वन ऑल्सो वी सॉल्व दिस वन टू. एंड द आंसर इज ऑप्शन सी, 6. And the next question is 13th one. Have you solved this one? What is the answer? What is the answer, guys? Rohan, you can ask your doubts at the end of the session. We'll give you access to unmute yourself. Okay, so if you have not solved, no worries. बाद में देख लेना. The answer is option A, that is 11. And for the same, this one we already solved this one in the class, and the answer is option A, that is 25. Now 15th question. This one is a very good question, and I have asked you to solve this. ये बताओ ये किसने कितने लोगों ने सॉल्व कर पाई है? Because it is very good question.
एंड इट इज अ कैट क्वेश्चन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये पास्ट ईयर कैट का क्वेश्चन है ये। व्हाट इज द आंसर गाइस? दोज हु हैवंट सॉल्व्ड, आई विल गिव यू 2 minutes, just try it. Let's see how many of you are able to solve this. You have 2 minutes, let's try. The new students, जो those who joined today itself and जिसने पुराना क्लास नहीं देखा हो, वो ट्राई करो इसे। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए गाइस, हो जाना चाहिए था अभी तक। लेट्स सी क्या कह रहा है क्वेश्चन। If PQRS are the number of distinct integral values that x square, y square, x cube, and y cube can respectively assume, where x is this, y is this, okay, then which of the following statements is true? यहाँ क्या कह रहा है, जो PQRS है, इट इज नथिंग बट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीग्रल वैल्यूज। मतलब एक्स स्क्वायर का जो रेंज आएगा, वट एवर द रेंज, जो भी एक्स स्क्वायर का होगा, तो ये जो नंबर, जिनके बीच में जितने भी नंबर्स आएंगे, दैट वैल्यू शुड बी इक्वल टू पी। समझ रहे हो? लेट्स से पहले रेंज निकालते हैं एक्स स्क्वायर के कितने वैल्यूज होते हैं। एक्स का रेंज हमें पता है, वी हैव गिवन रेंज फॉर एक्स। सो इफ आई से द रेंज फॉर एक्स इज -7 to -3, ओके। एक्स के लिए रेंज क्या है? -7 to -3। मुझे फर्स्ट वैल्यू क्या निकालना है? एक्स स्क्वायर निकालना है। सो व्हाट इज माई एक्स स्क्वायर? माई एक्स स्क्वायर शुड बी नथिंग बट, मुझे दो वैल्यू निकालने पड़ेंगे, एक होना चाहिए मैक्सिमम, एक होना चाहिए मिनिमम, राइट? एक होना चाहिए मैक्सिमम, एक होना चाहिए, यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा दिस शुड बी मैक्सिमम वैल्यू, और यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा ये कैसा रहेगा? मेरा मिनिमम वैल्यू। छोटे से छोटा वैल्यू यहाँ पे चाहिए मुझे, राइट? कैसे निकालोगे? यू सी, स्क्वायर है ये, मुझे एक्स का स्क्वायर करना है। तो मेरा छोटा वैल्यू यहाँ पे क्या दिख रहा है? व्हाट इज द स्मॉलर वैल्यू? किसका स्क्वायर स्मॉलर होगा? -3 का स्क्वायर शुड बी 9, राइट? एंड -7 का स्क्वायर, दैट इज 49। गॉट इट? ये 9 आ रहा है, ये 49 आ रहा। छोटा कौन सा है? छोटा है 9, तो 9 को यहाँ लिख दो। बड़ा कौन सा है? 49, तो 49 यहाँ लिख दो। और छोटा मैं कर सकता हूँ इससे छोटा, माइनस मतलब 9 से छोटा बना सकता हूँ मैं? नो, नॉट पॉसिबल, क्योंकि उस रेंज में बड़े वैल्यू है बाकी तो नाउ यू व्हाट यू हैव टू सी, यू हैव टू सिंपली कैलकुलेट द वैल्यूज बिटवीन दीज टू। इन दोनों की ये रेंज आपको निकालना है। रेंज में कितने वैल्यूज है? तो 9, 49। यू कैन सी, मैंने कल ही बताया था कैसे कैलकुलेट करना है। 9 and 49 बोथ आर इंक्लूडेड, ओके, दोनों इंक्लूड है। कैसे निकालोगे? फाइनल माइनस इनिशियल +1, दैट्स इट। so the value for answer for this is 41। so 41 is what? 41 किसकी वैल्यू आई? This value, that is this 41, this 41 is equivalent to, this 41 is equal to nothing but p। तो p की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? 41। यू कैन सिंपली एलिमिनेट द ऑप्शंस, बट यहाँ देखो सारे वैल्यू p के 41 41 है, ये भी 41, यहाँ भी 41, यहाँ भी 41। तो अब ऐसे एलिमिनेट नहीं कर सकते हो। सो यू हैव टू फाइंड द नेक्स्ट वैल्यू। नेक्स्ट वैल्यू इज व्हाट? वाई स्क्वायर। बट वाई स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल टू क्यू। Okay, so if I find y square, I will say simply eliminate two options. So let's find the y square. Got it? ये समझा ना कैसे मैंने निकाला? Do you have doubt here? In this case, let's come to y square. Y square. So when it come to y square, again I have to find two values. I have to find two values. Now what is the range? Range for y, you can see here. The range for y is -7 to 3. The range for y is -7 to 3. So maximum value, which value should be a maximum value? मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? बड़े से बड़े नंबर का स्क्वायर कर दो। तो -7 का स्क्वायर इज व्हाट? दिस नथिंग बट 49। एंड यू कैन सी, इससे बड़ा नंबर मैं बना नहीं सकता वहां पे, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गया? 49। मिनिमम इज व्हाट डू से, क्या मिनिमम के लिए लूँ? यू कैन सी इन द रेंज, इन द रेंज -7 से लेके, जब मैं बात कर रहा हूँ एक रेंज की -7 से लेके 3 तक, तो अगर मैं 3 का स्क्वायर बनाऊंगा तो यही मुझे 9 मिलेगा। माइनस किसी भी वैल्यू का स्क्वायर बनाऊंगा तो दिस विल बी गोइंग टू बी अराउंड 49। दैट इज पॉजिटिव वैल्यू ही बन रहा है क्योंकि स्क्वायर ले रहे हैं हम, राइट? तो यहाँ पे बीच में मिडिल में दिख रहा है कहीं पे जीरो भी है, इस रेंज में कहीं पे जीरो भी आ रहा
है, सो आई कुड सिंपली डू जीरो। मैं बोलूंगा मैं जीरो का स्क्वायर कर दो, जीरो का स्क्वायर इज व्हाट, जीरो। दिस इज द रेंज फॉर वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर की रेंज क्या बन गई, दैट इज 0 to 49, एंड बोथ आर इंक्लूसिव। दोनों इंक्लूड है, जीरो भी इंक्लूड है, 49 भी इंक्लूड है। तो 0 49 दोनों इंक्लूड है, तो व्हाट इज द वैल्यू, सिंपली कैलकुलेट। सो व्हाट इज दिस, व्हाट यू हैव टू डू, सिंपली फाइनल माइनस इनिशियल प्लस वन, फाइनल minus initial plus 1, that is nothing but 50. Oops. So this value is equal to 50. You can see here in the options, if you see the options carefully, there is no value of q is equal to 50. You can simply eliminate all the options, right? You can eliminate option 1, eliminate option 2, eliminate option 3, and simply the answer is option 4. Got it? तो ये तो ऑप्शन की बात है हो गई, क्योंकि ये वैल्यू किसके इक्वल, दिस वैल्यू इज इक्वल टू क्यू, राइट? सो दिस इज, ये तो ऑप्शन की बात हो गई। बट बट we have to solve the question because we are here to learn, like एक तो एलिमिनेशन ऐसा एक्चुअल पेपर में आपको ऐसे ही करना है सॉल्व। यू डोंट हैव टू कैलकुलेट अदर टू वैल्यूज एंड देन decide to mark the answer. If you simply find two values p and q, and you can see the value for p is different, sorry, q is different. Here q's value is 9, but our value is 50. Here you can see q value is 41, here is also 41. Simply you can eliminate all these option and mark option D. But right now we are in learning phase, we are here for learning purpose. So we'll calculate the value for x cube and y cube also. Why we are calculating this, देखो मैं बताता हूँ। चलो अभी आपको अगर इतना समझ में आया एक्स स्क्वायर कैसे निकालना है, वाई स्क्वायर कैसे निकालना है, आई कुड सिंपली इरेज दिस, एंड मैं यहाँ लिख देता हूँ पी और क्यू की वैल्यू क्या आई है हमारी। दैट इज दिस इज फॉर पीज वैल्यू माई 41 एंड क्यूज वैल्यू शुड बी 50। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू एबल टू सॉल्व और फाइंड द वैल्यू फॉर आर। अगर मैं पूछूं वाई क्यूब एक्स क्यूब के बारे में, ओके, एक्स क्यूब का रेंज क्या बनना चाहिए, व्हाट डू यू से, व्हाट शुड बी अ रेंज फॉर एक्स क्यूब? बताओ भाई, समझा नहीं है क्या, एक्स क्यूब का रेंज नहीं बता पा रहे हो? हियर आई नीड मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, इतना समझ लो। मैक्सिमम वैल्यू चाहिए यहाँ पे, मिनिमम चाहिए। -343 मिनिमम वैल्यू, राइट निकेश? सो सी, मिनिमम करना है मुझे तो मिनिमम जितना छोटा कर सके उतना होता है। क्यूब है, क्यूब है तो मैं -7 का अगर मैं क्यूब निकालूं, सी आई लाइक इन फर्स्ट क्लास और of the second class of linear equation I told you, whenever you see this power is odd, simply odd है और माइनस है तो साइन क्या रहेगा, -7 the cube, that is 343. Am I able to make more smaller than this one, -343? No. तो इसका आंसर आ जाएगा -343 मिनिमम वैल्यू का। व्हेन इट कम टू मैक्सिमम, मुझे मैक्सिमाइज करना है, मैक्स टू मैक्स में कितना कर सकता हूँ? सो यू कैन सी द रेंज इज इन माइनस, पॉजिटिव में तो है नहीं, तो छोटा नंबर जो है -3 हो गया, और मैं इसका जो क्यूब रहेगा यही मैक्सिमम रह सकता है, राइट? तो क्यूब इज नथिंग बट -27। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे यार -27 कैसे बड़ा है, ये कैसे छोटा है? तो देखो नेगेटिव में क्या होता है ना, छोटा वैल्यू बड़ा होता है और बड़ा वैल्यू छोटा होता है। दिस इज द केस व्हेन इट कम टू नेगेटिव। नाउ अगेन यू हैव टू कैलकुलेट द रेंज, यू हैव टू कैलकुलेट द रेंज टू फाइंड द वैल्यू फॉर आर। तो आर की वैल्यू कैसे निकालोगे, सिंपली रेंज क्या दिख रहा है आपको, फाइनल माइनस इनिशियल। सो फाइनल इज -27 माइनस इनिशियल, दैट इज -343 प्लस 1। व्हेन यू सॉल्व दिस यू विल गेट, ये हो जाएगा +345, 345 -27, दैट इज 317, right? So this is the value for r. Similarly, when you calculate for y cube, again y cube, what should be a maximum value?
ऑब्वियसली द पॉजिटिव नंबर इज 3. यू कैन मेक अ वैल्यू फॉर 3, तो 3 का जो क्यूब आएगा वो मैक्सिमम हो जाएगा, दैट इज 27, राइट. When it comes to minimum value, again you can see the minimum value is -7, and if you cube the -7, you will get a -343, and this is a minimum value. इससे छोटा आप नहीं बना सकते हो, राइट. ये दोनों बन गया, अब इसके बीच का रेंज निकाल लो. सो अगेन s इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू 27 माइनस, sorry, final value minus initial value, that is 343 plus 1. So answer for this is 343 plus 1, 345. 345 plus 27 is 3 370. Okay, 371. So this is the answer. So अगर किसने पूछ लिया कि पी क्यू आर की वैल्यू क्या है, तो आपको पता है ये कैसे निकालना. गॉट इट. देखो सिंपल है, लॉजिकली करना है, दिमाग जितना यूज करोगे उतना बेटर वे में आप आंसर ला पाओगे. सो दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज. कैट का क्वेश्चन था ऊपर वाला. दिस इज द क्वेश्चन. आई बिलीव यू कैन सॉल्व दिस. आप ये इजीली सॉल्व कर सकते हो. इंटीग्रल वैल्यू निकालना है, शायद ये आपने कर भी लिया होगा. दो वैल्यूज आएंगे, इसके बीच में प्लस माइनस प्लस कर लो, जो भी वैल्यूज आ रहा है यू हैव टू कैलकुलेट दिस. सो आई ऑलरेडी टोल्ड यू हाउ टू कैलकुलेट दिस वन. ये मैंने बता चुका हूँ लास्ट क्लास में, तो अगर आपने ना देखा हो तो गो एंड वॉच इट. तो इसका आंसर है दैट इज, गिव मी मोमेंट, लेट मी चेक व्हाट इज द आंसर फॉर दिस. क्वेश्चन नंबर 16. आई हैव सॉल्व समवेयर बट आई डोंट नो किधर रख दिया मैंने. ओके, सो आंसर फॉर दिस इज, जिसका आंसर आ रहा है ऑप्शन डी, दैट इज इनफाइनाइट. ओके, सो यू कैन सॉल्व इफ यू हैवंट सॉल्व राइट नाउ, बाद में आप कर लेना. ये ऑलरेडी मैंने शीट आपको शेयर किया था. ओके, दिस वन कल ही मैंने एक समझाया था, हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. एनीवन, किसी को डाउट है इसमें? इफ यू हैव सॉल्व, नहीं हो किए होगे तो क्या ही डाउट होना चाहिए. बता दो भाई, बता दूंगा, मैं समझा दूंगा. नो डाउट. 4. 4 आ रहा है क्या आपका आंसर? 4 कैसे आ सकता है इसका आंसर? सी, जिसने नहीं किया उनके लिए बता देता हूँ मैं एक बार, थोड़ा सा तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे. और लेट्स से, लेट्स टेक योर टाइम और सॉल्व. इसके पहले का 4. ओके, लेट्स टेक योर टाइम, 2 मिनट्स एक बार दे रहा हूँ, फिर मैं इसमें एक और एड ऑन कुछ करके मैं इसको अलग करने वाला क्वेश्चन को. डिफरेंट वे में आई विल आस्क द सेम क्वेश्चन. सो जिसने नहीं किया वो भी एक बार ट्राई करो इसे, बिकॉज इसमें एक और बढ़िया सा मेरे को एक याद आ गया क्वेश्चन, इसके ऊपर ही बन सकता है. सो विल आस्क यू द सेम क्वेश्चन एंड विल सी व्हाट आर द डिफरेंस. क्वेश्चन में डिफरेंस क्या हो जाता है जस्ट इन अ सिंगल चेंज और माइनर चेंजेस करने पे. So how to solve this one? I yesterday I told you. You can see if I put all these number on number line. Okay, if this is my number line and I put all the number, you can see number क्या क्या मिल रहा है. If here is x, x is -9, it means what? X is equal to 9. यहाँ से 9 मिल गया, यहाँ से 12. So you can see plus positive numbers, right? So +9 +12, this is what the numbers we are getting. So my series will start from here. You can see this is 9, and then 12, then 15, then so on till 96. Now the step 2 was what? You can see what is the sign of a coefficient of highest power of x. So you can, here you can simply see whatever will be a like a number,
वैसे सब में x का जो x के आगे जो कोफिशिएंट है दैट इज पॉजिटिव. So coefficient of x in all the cases are positive. It means my highest power also have positive sign. So I don't need to solve all the value and to get a highest number and then their coefficient. Simply just to have to check the sign. तो अगर यहाँ पे माइनस एक में भी माइनस होता तो मेरा साइन चेंज हो जाता और माइनस बन जाता, राइट. But you can see all numbers have positive sign, like all values of x has positive coefficient. So obviously the highest power of x should be a positive. Simply मेरे स्टार्ट कैसे होगा, दिस शुड बी माय स्टार्ट पॉजिटिव, नेगेटिव, देन अगेन पॉजिटिव, दिस विल सो ऑन एंड इट विल गो स्टिल हियर. नाउ आई डोंट नो कि from which value it will going to end up, like is it a positive or negative. So because my value started from positive I, तो I believe this value is also positive. yesterday मैंने ये बताया भी बताया था कि एंड यहाँ पे जो होगा इसका पॉजिटिव से स्टार्ट होता है, एंड भी पॉजिटिव पे होगा, राइट. गॉट इट. अब ये हो गया, अगर आपको ये समझ में आ गया. सो नाउ सी आई हैव टू फर्स्ट कैलकुलेट हाउ मेनी नंबर्स आर दीज. कितने ये नंबर्स है, तो कैसे निकालना है इसके लिए. तो आई हैव टोल्ड यू इधर यू कैन यूज अ टीएन फॉर्मूला, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का. टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. यूज दिस फॉर्मूला और यू कैन सिंपली डू व्हाट, you have to calculate number of value that is n. So for the shortcut is last value that is tn minus, या फिर इसे थोड़ा अपने फॉर्म में लिख लो, मेरे फॉर्म में कैसे, दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन that is difference plus 1. What is the final? Final is 96. So 96 minus initial is what? Initial is 9 upon difference. The difference is what? What is the difference between these two? 9, 12 minus 9. This should be 3, right? So the difference is 3 plus 1. Solve this, you will get the answer. So 96 minus 9. This should be 80. What 80 कितना हो जाएगा, 3 यहाँ पे का तो 87. Okay, 87 upon 3 plus 1. When you divide 87 by 3, you will get 2 and 9 29 plus 1, that is equal to 30. So the number are 30. The numbers are 30. But how many sign changes? साइन चेंजेस जो होता है वो कितना होता है. साइन की स्पेलिंग भी गलत लिख रहा हूँ मैं अब. साइन चेंजेस कितना होता है, n प्लस वन, राइट. एंड यू हैव टू डिवाइड इट इन टू पार्ट. एन को आपको दो पार्ट में डिवाइडना पड़ता है. एक कौन से पार्ट में, दैट इज वन इज पॉजिटिव साइन, सेकंड वन इज नेगेटिव साइन. सो हाउ मेनी पॉजिटिव साइन, हियर यू कैन सी n इज 30. So when you divide 30 in two parts, you will get two values. One is 15, second one is also 15, right? So how many sign changes here? 15, 15 equally. But because my value started with a positive number, okay, because my value, like this is value, it started with a positive number, the plus one will go with whom? It will go with positive sign. So positive sign कितना हो गया 16, negative कितना हो गया 15. Got it? Positive sign is 15, 16, negative sign is 15. Now let's come to the question and see what exactly question asked you. The question asking you how many non-negative integral values you have to find. कौन सी वैल्यूज चाहिए आपको, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल. नॉन नेगेटिव किसे कहते हैं? इफ यू रिमेंबर, नॉन नेगेटिव इज नथिंग बट 0, 1, 2, 3. These are the values which we call non-negative, right? And what you have to calculate, your equation should be less than 0. Less than 0 means what? Less than 0 means you have to check the negative value, sign value, right? Right or wrong? You have to check the negative sign value. If you see the negative sign value, these are the values you have to check. So how many negative sign value? This is 15 values. ठीक है, 15 values. So simply what you can do, you can mark 15 as an answer. But अगर आप 15 mark करके आ रहे हो, you are getting the wrong answer. You can see difference कितने का है भाई. छोड़ो डिफरेंस, छोड़ो, इन दोनों नंबर के बीच में वैल्यूज कितने आ रहे हैं. You can see there is two value between 9 and 12. How many values are there?
two values, that is 10 or 11. There are two values, so you have to multiply it by 2, not only 15 से सीधा करके mark कर दो. So the answer for this question is 30. Got it? समझा या नहीं समझा? Gothman, got the point? There are two numbers between the two values, 9 and 12. There are two numbers. If there is one number, you can simply mark 15. But you can see here there are two numbers, that is 10 and 11. So you can't mark it simply just 15. You have to multiply it by 2 because there are two number between these two. What if अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू साइन दे दूं, अब आंसर बताओ क्या आएगा? If this sign should be equal to, now do let me know how many, what is should be the answer. क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? इतना टाइम? सब कुछ तो सॉल्व है भाई. क्या देखना है? सिर्फ मैंने इक्वल टू लगा दिया है. नाउ सी हियर. जैसे ही मैंने यहाँ इक्वल टू लगा दिया ना, व्हाट इट मीन? इट मीन्स आई हैव टू कैलकुलेट दीज टू वैल्यूज ऑल्सो. कल ही बताया था ना, इक्वल टू मीन्स व्हाट, वी हैव टू इंक्लूड दिस टू वैल्यू ऑल्सो in the range. Right now, initially the range is what? Range is 9 comma 12. This is the range. That's why we are counting the number between these two value. But this now it is changed and it is become a 9 comma 12. Here 9 and 12 are included. Okay, both are included. Now how many values are there? चार वैल्यू हो गए. ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया. So now what you going to mark? We have to mark now 15 into 4. समझा? Got the point, guys? Okay. Okay, if you got this, well and good. बहुत बढ़िया, अगर ये समझ में आया तो. Now let's see. If I change, I make one more change here. Now change is what? This is not less than. Now it is, this equation should be greater than 0. Okay. Equation क्या हो गया? Greater than 0 हो गया. Is there any color? Let's say white वाला. Greater than 0 हो गया, तब क्या करोगे बताओ? Give me the answer. Everything is solved already. If now the question is like this. Infinity. Okay, so now the answer is infinite. Why? Why? Why so? Nikesh, can you please give me a reason why it is happening? देखो अब इस केस में क्या हो गया ना. नाउ माय इक्वेशन इज ग्रेटर देन 0. इक्वेशन मेरा कैसा हो गया? ग्रेटर देन 0 हो गया. तो अब मुझे, ग्रेटर देन 0 मीन्स व्हाट? ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव वैल्यू. Greater than 0 means what? Positive value, right? Now I have to check only positive values. You can see the positive sign is 1 is here, right? And similarly there are, this is the positive sign and it will go till here, right? So now from here you will get an infinite value because आपने क्या किया? ये जो पॉजिटिव साइन इसको देखा कि यार यहाँ से तो जितनी वैल्यूज है सारे पॉजिटिव है, तो सारे कैलकुलेट कर दूंगा, इनफाइनाइट मार्क कर दूंगा. बट दिस इज द शिट मिस्टेक because you haven't read what I asked you, non negative integers.
सो ये आपको इन्फाइनाइट तक नहीं जाना है, आपको जीरो तक ही जाना है। आपको जीरो तक ही जाना है और रुक जाना है, थम जाना है। गॉट इट? सो नाउ इन दिस केस व्हाट हैपेंड, फॉर दीज 15 वैल्यूज, लेट्स से, बिकॉज आई हैव टू कैलकुलेट नाउ पॉजिटिव साइन। तो 15 पॉजिटिव साइन अलग था, ये +1 जो था ये वाला हुआ, राइट? तो व्हाट आई वुड से सिंपली, फॉर दीज 15 वैल्यूज, ओके, फॉर दीज 15 वैल्यू, दिस प्लस यहाँ से यहाँ तक जितने प्लस वाले हैं इसके लिए 15 वैल्यूज into 2, this is my 30. Now here you can see this is also the range. Okay, and you can see here in this range how many values are there? 0 to 8, both are inclusive. Okay, दोनों इंक्लूड करने का, तो यहाँ पे वैल्यूज कितना है? फ्रॉम हियर यू विल गेट अ 9 वैल्यूज, एंड फॉर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 39। गॉट इट? इनफाइनाइट तक नहीं जाना है बिकॉज यह लिमिट है, नॉन नेगेटिव पूछा है। अगर यह नॉन नेगेटिव नहीं रहे, लेट्स से ये हटा दूं मैं, इफ आई रिमूव दिस, how many integral values can take x? Now the answer is infinite. अब आंसर क्या होगा इसका? अब आंसर होगा इसका इनफाइनाइट। थोड़ा सा सर के ऊपर जाएंगे ये वाला क्वेश्चन। आई वुड रिकमेंड यू जाके रिकॉर्डिंग एक बार देख लो, ठीक है? बाद में एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना रिवीजन के लिए, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अ लिटिल बिट चेंज इन साइन एंड यू विल गेट आंसर। मतलब देखो ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है, किसी का 15 आ रहा था, एक्चुअल आंसर 30 था, यहाँ पे चेंज होकर 39 हो रहा है। जस्ट अ सिंपल चेंज। If I change it by simply, I would say integral values. Now the answer for this is infinite. So the simple change make the question very different. Okay, cool. Let's go ahead. If you understood this, बहुत बढ़िया, यही समझाना था मुझे तो मैं समझा दिया आज ये। अरे यार, okay, answer for this question is, ये सॉल्व हुआ ना? व्हाट हैपेंड गाइस, सॉल्व नहीं करते हो क्या यार आप लोग? नो रिस्पॉन्स, मतलब नहीं किया सॉल्व? को यार सिंपल है, सिंपल बात है। मैं समझाऊंगा वो डिफरेंट थिंग है, बट अगर आप ट्राई नहीं करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि डाउट क्या है, व्हाट एग्जैक्टली डाउट। सो इट डजंट मेक सेंस, इसलिए मैंने लास्ट टाइम में कुछ सेशंस का डाउट नहीं लिया था। तो या, नो वरीज, बाकी आपकी इच्छा है। डाउट है तो कभी भी आ जाना, विल ट्राई, इफ पॉसिबल तो विल ट्राई टू रिजॉल्व। सो फॉर दिस क्वेश्चन द आंसर इज, आई एम सिंपली राइटिंग हियर द आंसर, यू कैन चेक इट आउट लेटर ऑन। सो आंसर इज 7। ओके, पेन कलर चेंज कर लो, आंसर इज 7। दिस इज अ कैट क्वेश्चन, I hope you got the solution for the same. So answer for this question is cat 22 slot 2, right? This is 23 is the answer. Is equals to 23. Okay, ये भी है क्या? This is also similar one. देखो कैट के, देखो रिफ्लेक्ट क्वेश्चन, देखो सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन इन 2022 स्लॉट 2 में ऐसा क्वेश्चन था, स्लॉट 3 में ऐसा क्वेश्चन, ऑलमोस्ट सिमिलर, नो न्यू लॉजिक, सेम लॉजिक पे क्वेश्चन आया दोनों स्लॉट में। दैट इज अ गुड थिंग इन कैट, कि जो क्वेश्चंस है वो रिपीट होते हैं, मतलब सिमिलर काइंड, नॉट एग्जैक्टली क्वेश्चन बट द लॉजिक्स, जो भी लॉजिक है वो रिपीट होता है। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 6। ये पीडीएफ, अच्छा तो आप वही हो ना जो जल्दी क्लास छोड़ के चले गए थे? ये मैंने सेशन में ही दिया था सबको, सेशन में ही आई शेयर्ड दिस पीडीएफ।
एंड अपार्ट फ्रॉम द सेशन मैंने ड्राइव पे शायद अपलोड कर दिया था ये, माइट भी शायद नहीं भी किया हो, बट किया तो था. No worries, you can try it on your own pace. Now this is a good question. I would recommend you to try it once. I will give you a 2 minutes. Let's try this question. Then we'll start with a new topic. कुछ न्यू चीज मुझे बताना है आज. एंड टुडे विल, ये फाइनल सेशन है इसका, इनइक्वालिटीज का जो भी होगा आज हम खत्म करने वाले हैं. देयर इज अ चेंज, थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे, क्योंकि मैं खुद अभी कंफ्यूज हो गया इसे सॉल्व करते करते. दिस इज नॉट 4n, दिस इज 4 to the power n. ओके, ये 4 to the power n है, तो वो मिस्टेक है यहाँ पे, तो उसे समझ लो. ओके, सीरियस. हाँ, ये वाइट कलर. दिस इज 4 to the power n. दिस इज द क्वेश्चन. अब बताओ क्या आ रहा है. 39 eliminated. Someone got answer. Gothman got answer 39. You said 39 eliminated. Okay, let's see how to solve this kind of question. Because see, you have a calculator in CAT, but क्या calculator आप use करोगे 17 to the power 19? Are you guys going to do like a 17 into 17 into 17? ऐसे थोड़ी करोगे आप. पहले 17 किया, फिर 4 का करोगे, ऐसा करोगे नहीं. दिस इज अ रॉन्ग अप्रोच. ऐसा कभी भी करना भी नहीं है. ठीक है. लेट्स सी. When it come to 4, I know, I know that is, if I square the 4, if I square value 4, okay, what I can do simply, let's say here, this is 4 to the power n, right? I would simply do what? I would simply say it is nothing but 2n upon 2. बात वही हो रही ना, 2n by 2. It is nothing but 4 square raised to the power n by 2. Got the point? Got the point? How I did? अगर ये नहीं समझ में, विल सी इन इंडाइसेस जब हम पढ़ेंगे, बेसिक्स ऑफ इंडाइसेस. 30 मिनट सेशन बहुत इनफ है मतलब इसके लिए. तो बेसिक्स ऑफ इंडाइसेस क्या कहता है? बेसिक्स ऑफ इंडाइसेस के अकॉर्डिंग अगर आप जाओ, तो यू कैन सी, यार, a to the power n into m, you can write it in is such a way, a to the power n raised to the power m. आप ऐसे इसे लिख सकते हो. ओके, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में, ये क्या हो रहा है, ए का पावर ब्रैकेट में अलग है और बाहर भी अलग है. दिस इज व्हाट वन लॉज ऑफ इंडाइसेस. ओके, ये एन का पावर नहीं है, ये फोल ब्रैकेट का पावर है. ओके, तो ए टू द पावर एन, और इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं. दिस इज द वन थिंग. तो मैंने यहाँ पे सिंपली क्या किया, मैंने 2 से एन बाई 2 को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया. 2 से सिंपली व्हाट आई गॉट, मैंने ये 2 को कहा कि चलो ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड अगर मैं कर दिया हूँ, लेट्स एक्सपांड इट. और क्लियरली मैं लिख देता हूँ इसे. व्हाट आई डिड सिंपली, 2 into n by 2, ये मैंने कर दिया. यू कैन सी दिस एंड दिस इज सिमिलर. अगेन इसके बाद मैंने क्या किया, दैट इज नथिंग बट 4 स्क्वायर अपॉन n by 2. नाउ 4 स्क्वायर वाज 16. 16 to the power n by 2. अब मैंने ये क्यों किया? सिंपल सी बात है, कभी भी ऐसे क्वेश्चंस में जब आपको दो दो वैल्यूज को कंपेयर करके कुछ वैल्यू निकालना है, आपको दोनों को इतने क्लोज लेके जाना पड़ेगा, सो दैट योर वैल्यू शुड बी, और आंसर आपका करेक्ट आ जाए. ठीक है, विदाउट सॉल्विंग और डूइंग लॉट्स ऑफ रिटर्न ट्रायल्स. तो इसे मैंने बहुत क्लोज लेकर, यू कैन सी हियर, दिस 16 टू बी द पावर n by 2. दिस सेम यही बात हो रही है ना, 16 टू द पावर n by 2 यही हो रहा है, इज ग्रेटर देन 17 टू द पावर 19. गॉट इट? आई, like I solved and got a value which is very close. You can see 16 to the power n by 2
इज ग्रेटर देन 17 टू पावर 19। मैंने दोनों को 16 और 17 दोनों आसपास ला दिया। नाउ बाय बेसिक लॉजिक, अगर मैं बोलूं लेट अस से these two value are equal, 60 like n by 2 is equal to 19. Okay, if I say n by 2 is equal to 19, my value n by 2 is equal to 19. In this case, what I will get, n is equal to 38. Got it? n क्या मिलेगा? 38. So what it mean? What it mean? अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल हो जाए, ये दोनों वैल्यू मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि 16 टू द पावर 38 इज ऑलमोस्ट यू कैन से और लिटिल बिट आगे पीछे होगा, मतलब थोड़ा सा इसके जस्ट बाद। दिस इज नथिंग बट 4 टू द पावर 19। ओके, सॉरी नॉट 19, 38 का डबल हो जाएगा, सॉरी नॉट 19। तो अगर मैं इसकी बात करूं, दैट इज 16 टू द पावर 38। ओके, इन दिस केस, व्हाट यू कैन सी हियर, गिव मी मोमेंट, कुछ तो गड़बड़ हो गया शायद। नहीं सही तो है, नथिंग रॉन्ग, कुछ रॉन्ग नहीं है। ओके कूल, नो वरीज, सही है। नाउ ये दोनों वैल्यूज बहुत ज्यादा ये आ गए। अब सिंपल लॉजिक से जाओ। इफ आई वुड से कोई एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन मान के चलो, 2 का स्क्वायर जो है, और लेट्स से 3 का स्क्वायर, और मैं बात कर रहा हूँ 4 के स्क्वायर का। तो 3 का स्क्वायर इज व्हाट? 9। 4 द स्क्वायर इज व्हाट? 4 का स्क्वायर क्या है? 16। बट अगर मैं 3 के वैल्यू को अगर मैं एक से भी रेज कर दूं, मेरी वैल्यू 16 से बड़ी हो जाएंगी। आई वुड से सिंपली 3 क्यूब इज नथिंग बट व्हाट? 27। यू कैन सी ये बड़ा है या नहीं है बड़ा। तो बाय सेम लॉजिक इफ आई सी हियर, अगर n 38 होगा तो 16 टू द पावर 38 तो छोटा ही होगा ना। 16 टू द पावर 38, 16 टू द पावर 38 है तो ऑब्वियसली छोटा होगा किससे? 17 टू द पावर 19 से। बट बट अगर मैं इसे रेज कर दूं, ओके, इफ आई रेज द वैल्यू, मेरी वैल्यू क्या हो जाएंगी चेंज? अगर मैं इसको बोलूँ 16 टू द पावर 39, नाउ इन दिस केस दिस वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन दिस वन, राइट? तो सिंपली एन की वैल्यू अगर यहाँ पे 38 आ रही है, तो अगर मैं इसको +1 से अगर रेज कर दूं, तो यहाँ पे मेरी वैल्यू क्या आ जाएंगी? द माई वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन, और ये वाला जो इक्वेशन है ये सेटिस्फाई करेगा। ऑल्सो अगर आप 38 निकाल चुके हो तो बाकी सारे वैल्यूज एलिमिनेट कर सकते हो डायरेक्टली। तो यू हैव लेफ्ट विथ नो आंसर, दैट इज ऑप्शन, सीधा 39 मार्क कर दो। बट फॉर द केस ऑफ थीटा, यू कैन यूज दिस लॉजिक कि एन अगर 38 है, 38 पे तो ये वैल्यू डेफिनेटली छोटा ही होगा, 16 टू द पावर 38 ऑब्वियसली छोटा होगा 17 टू द पावर 19 से। बट जैसे ही आप इसकी वैल्यू को रेस कर दोगे बाय +1, यू विल गेट योर आंसर शुड बी ग्रेटर देन दिस। गॉट इट? कोई इश्यू तो नहीं है भाई किसी को? बता दो हो तो। नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। द आंसर फॉर दिस इज 39। ऐसे सॉल्व करना था। एंड दिस इज सिमिलर क्वेश्चन, यू कैन ट्राई। नहीं आया तो विल लेट यू नो और हेल्प यू सॉल्व दिस क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास। कि मुझे आज जो सिखाना है वो करवा देता हूँ। दिस आंसर फॉर दिस इज, ओके, इसका आंसर बता देता हूँ। कौन सा क्वेश्चन? 22। ओके 22, क्वेश्चन नंबर 22। आंसर शुड बी, द आंसर इज 7। नेक्स्ट, दिस इज ऑल्सो कैट क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन, इजी है। एम और एन को आपको यहाँ पे इवेल्युएट करना है। ओके, सोच समझ के एम और एन की वैल्यूज डालना, सो दैट यू विल गेट दिस वैल्यू। और इसका आंसर जो आएगा, दिस इज क्वेश्चन, कि इसका आंसर, यार मैंने सॉल्व नहीं किया शायद ये वाला।
Yes, I haven't solved this. So you can solve and try. We'll check this question in next class. Modulus की जब class होगी, first class of modulus will uh, help you. अगर आपको doubt हो इसमें तो we'll give you a solution. Okay, let's come to the new part जो आज हम करने वाले थे. So this is important. अब जो है थोड़ा अच्छे से ध्यान से पेशेंसली सुनो और समझो, बस यहाँ से आज की सेशन स्टार्ट हो रहा है एंड वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब मैंने आपको ऑलरेडी सॉल्व करना सिखा चुका हूँ, बट फिर भी यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस टाइप हैं जो हम देखेंगे अभी. एंड विल सी हाउ टू सॉल्व दोज काइंड ऑफ क्वेश्चंस. अगर वो आपको सॉल्व करना आ गया देन वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया है. उसके बाद फिर दुख खत्म हो जाएगा आपका. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, एंड द क्वेश्चन इज सिंपल. यू हैव टू फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू. यू हैव टू फाइंड number of integral values of x. Integral values of x. And the question is this: x minus 7, x square minus 5x minus 6 upon 2x plus 4. This should be less than 0. अभी तक हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था, टिल नाउ हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है वो क्वेश्चन इस तरह से थे. लाइक सिंपल सा ऐसा आ रहा था कि इक्वेशन मिल जा रहा था मुझे. दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6. दिस शुड बी लेस देन 0. मुझे पूछा जाता था इसका इंटीग्रल वैल्यू बताओ, और नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज इसके पूछे जा रहे थे. बट नाउ इन दिस केस देख रहे हो, अब डिफिकल्टी बढ़ गई. क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट डिफरेंट हो गया. यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, चलो ये मल्टीप्लाई का तो इशू नहीं है, बट ये डिवाइड भी हो रहा है. हाउ टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन? सिंपली तरीका सेम है, कुछ नया नहीं करना है आपको. फर्स्ट यहाँ से वैल्यूज कितने आ रहे हैं. इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपके वैल्यूज क्या क्या आएंगे. इफ यू सॉल्व दिस वन, यू विल गेट द वैल्यू फॉर एक्स इज व्हाट. सिंपली -6 है तो -6 का जो वैल्यू चाहिए आपको -5 आना चाहिए. ओके, सो दिस शुड बी नथिंग बट 6 1 6, राइट. तो अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूँ, इसको मैं यहीं पे सॉल्व कर लूँ अगर, तो माई वैल्यू शुड बी दैट इज -6 को अगर मैं तोड़ दूँ. चलो नीचे कर लेता हूँ यार, छोड़ो. एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, इसकी अगर मैं वैल्यूज निकाल लूँ तो -6 के दो वैल्यूज आएंगे, दैट इज -6 प्लस 1. एड when you multiply you will get -6, and when you add you will get -5. तो योर आंसर फॉर मतलब एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या क्या आएगी, यहाँ से आपकी वैल्यू होगी एक्स की 6 और -1. इफ यू सी दिस वन, यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, 0 करना है यार. देखो सिंपल लॉजिक लगाओ अब. छोड़ दो एक्स कैसे निकालना है, अगर ऐसा कभी दिख गया ना, समझ जाना इसको 0 बनाना है. x-7 है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएंगी, 7. तभी ये 0 बन पाएगा. यहाँ पे इसको 0 बनाना है, कैसे बना पाऊंगे इसे 0? हाउ टू मेक दिस वैल्यू 0? सिंपल है, x को -2 रख दो. So from here you will get value for x is -2. और even though if you solve this you will get still -2. ठीक है, अगर आप ऐसे लिख दो 2x plus 4, when you solve this and you want to make it 0, तो here you will get x is equal to -2. चार वैल्यूज आ गए, दो यहाँ से, एक वैल्यू ये वाला. नंबर लाइन पे रख दो इसे, कुछ नहीं करना, नंबर लाइन पे चारों वैल्यूज को रखना है. व्हाट आर दी वैल्यूज? नंबर लाइन पे कैसे रखोगे, छोटे से बड़ा. छोटा क्या है, -2. बड़ा क्या है उससे थोड़ा, -1. नेक्स्ट वन इज 6, लास्ट वन इज 7. अगेन नाउ यू हैव टू सी कि जो आपके वैल्यूज है उसका कोफिशिएंट क्या है. कोफिशिएंट तो देखना ही पड़ेगा हर बार. यू कैन सी यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो इनका मल्टीप्लीकेशन भी होगा तो क्या हो जाएगा, मेरा हाईएस्ट कोफिशिएंट प्लस आएगा. तो आपका जो वैल्यू इस तरह से चालू होगा, दिस इज प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस. व्हाट दे हैव आस्क्ड यू, दिस वैल्यू शुड बी दिस वैल्यू शुड बी लेस देन 0. ये कैसा होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए. मतलब कि क्या देखना है आपको, नेगेटिव देखना है. नेगेटिव मीन्स दिस माइनस वाला, ये भी माइनस वाला. नाउ सी सिंपली कितने वैल्यूज आ रहे हैं इस रेंज में.
क्योंकि इक्वल टू नहीं है तो ये एक्सक्लूड हो जाएगा, ये भी एक्सक्लूड, ये भी एक्सक्लूड, ये भी एक्सक्लूड। इसके बीच में कितने वैल्यूज है? यहाँ पे जीरो वैल्यूज आ जाएंगे। ओके। इस रेंज में कितने आ रहे हैं? 6 to 7। हाउ मेनी वैल्यूज आर इन बिटवीन 6 to 7? दैट इज 5 वन वैल्यू, सॉरी, जीरो वैल्यूज। 6 to 7 भी तो कोई वैल्यू नहीं है ना, कुछ कोई इंटीजर है इसके बीच में? नो। तो आंसर फॉर दिस इज जीरो। नंबर ऑफ इंटीग्रल कितने आएंगे इसके? जीरो। इफ आई आस्क यू रेंज, चलो रेंज बताओ भाई। रेंज कैसे लिखोगे ना? हाउ टू राइट दिस रेंज? ये रेंज जो है ना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेंज बता दो। रेंज कैसे लिखोगे? यू कैन सी, मुझे नेगेटिव वैल्यू कैलकुलेट करना है। कहाँ से करना है? -2 से 1 तक। आई कुड सिंपली राइट दिस -2 कॉमा -1। ओके। यूनियन, यूनियन किस लिए? क्योंकि और भी ऐड हो रहा है, एडिशन और भी है। यूनियन 6 कॉमा 7, दिस इज द रेंज। गॉट द पॉइंट गाइस? ठीक है, अगर रेंज पूछे तो आपको ऐसे बताना है, इस तरह से लिख के। ठीक है। अगर ये भी ना समझ रहा भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता, इससे इजीली मैं नहीं समझा सकता हूँ। दिस इज माई बेस्ट लेवल। नॉट बेस्ट बट हाँ, डाउट हो तो पूछो, फिर समझाओ मैं। एनी डाउट? नॉन इंजीनियर्स बोलो भाई, इंजीनियर को समझ में आ रहा है, मुझे पता चल रहा है। गौतम, अंशु, दिनेश, अवनीत, व्हाट अबाउट यू गाइस? इफ यू अंडरस्टूड दिस वन, सॉल्व दिस। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड। मेरी बात कितने को समझ में आ रही, पता चले अभी। नाउ द इक्वेशन इज x+7 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x+10 अपॉन 2x+4, this should be greater than equal to 0. You have to find the number of integral value and range also. दोनों निकालना है आपको। You have to find both range and number of integral value. So solve it. Have a try. Okay, let's see the answer, solution for this. तो खाना पहले खा लिया करो, थाली लेके मत बैठा करो गाइस। ठीक है। निकेश का तो हो गया है खा के, बाकी लोग बताओ क्या चल रहा। सो या, नाउ हियर इन दिस क्वेश्चन, इसका पहले वैल्यूज निकाल दो। क्या है इस इक्वेशन की वैल्यूज? एक्स के यहाँ पे क्या वैल्यूज आए? लेट्स सी गॉटमन, व्हाट इज द आंसर। यहाँ पे वैल्यूज क्या है आपकी गाइस? व्हाट आर द वैल्यूज? -x² -3x+10। ये तो सॉल्व करने आता है ना, कि ये भी नहीं भूल गए? क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने आता है ना आपको? सिंपली -10 के टू वैल्यूज, सो दैट आई विल मेक -3, दैट इज नथिंग बट 5 2s are, so I need a -3, that's why -5 plus 2, these are the two values, so values is 5 and 2। बिकॉज मैं साइन से, माइनस साइन से डिवाइड कर रहा, मल्टी डिवाइड कर रहा हूँ। सो -5 अपॉन -1 एंड दिस इज -1, this sign get cancelled, so I will get a 5. From here I will get a -2. Now change the sign, I will get a -5 and 2. These are the two values for this equation. इस इक्वेशन को सॉल्व करके मुझे क्या मिला? यहाँ पे दो वैल्यूज मिले, -5 और 2। If I solve this one, I will get here -7. When I solve this one, I will get simply -2. Got it? Now just plot it on the number line. चार वैल्यूज आए हैं, चारों को नंबर लाइन पे डाल दो। How to plot this on number line? Simply lowest, then second lowest, then -2, then 2. Now, now the issue is, and or the case is the learning also. सब यहीं पे एक साथ है। दिख रहा है यहाँ पे x² की वैल्यू के साथ क्या है? माइनस साइन है।
इफ आई मल्टीप्लाई दीज टू वैल्यूज, x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर होगा, ओके, x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर होगा। सो द हाइएस्ट वैल्यू दैट इज क्यूब जो मिलेगा मुझे, कैसा मिलेगा, माइनस एक्स क्यूब मिलेगा, राइट। इट मीन्स जो मेरी वैल्यू है हाईएस्ट पावर की डिग्री की, दैट शुड बी माइनस राइट नाउ। नाउ इन दिस केस इट इज माइनस, तो मेरी वैल्यू यहाँ पे जो स्टार्ट होगी माइनस से होगी, दैट इज माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ऑलवेज रिमेंबर, हम हमेशा आरएचएस से स्टार्ट करते हैं। कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ। गॉट इट। हमें क्या देखना है, हमें देखना है दिस इक्वेशन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। दिस इक्वेशन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इक्वल टू भी है, ग्रेटर देन भी होना चाहिए और इक्वल टू जीरो भी होना चाहिए। मीन्स वी हैव टू इंक्लूड दीज वैल्यूज टू। ये सारे वैल्यूज को हमें इंक्लूड करना है, ठीक है, ये सारे वैल्यूज को इंक्लूड करना है। तो जब आप इन्हें इंक्लूड करोगे, और कैसे चाहे ग्रेटर देन, इट मीन्स आई हैव टू चेक पॉजिटिव, क्योंकि वैल्यू बड़ा है, जीरो से बड़ा है, मतलब पॉजिटिव चेक करना है। तो पॉजिटिव यहाँ पे क्या दिख रहा है, दिस इज द प्लस, दिस वैल्यू इज प्लस। मेरा रेंज कैसे बनेगा, माई रेंज शुड बी, फर्स्ट लेट मेक्स रेंज, रेंज बना लो पहले। रेंज मेरा ऐसे बनेगा, -7, -7, देखो मैंने क्लोज ब्रैकेट यूज किया है, ब्रैकेट यू कैन सी द ब्रैकेट ऑल्सो, क्लोज ब्रैकेट, टू -5, बिकॉज -7 and -5 both are included, bracket close, union, union, again close bracket, that is -2 and 2, because both are included, both are included, but here is the change, here is the change, जब मैं यहाँ पे -2 डालूंगा ना, जब मैं यहाँ पे -2 डालूंगा, तो ये जो पूरी वैल्यूज जो है ना, मैंने पुट -2 इन दिस केस, तो मेरे ऊपर में कुछ भी इक्वेशन आए, नीचे वैल्यू क्या देंगे, जीरो एंड एनीथिंग, कोई भी वैल्यू, ठीक है, कुछ भी आए यहाँ पे, अगर उससे मैं जीरो से डिवाइड कर दूं, तो ये वैल्यू क्या हो जाता है, नॉट डिफाइन बन जाता है, नॉट डिफाइन, और वी कैन से सिंपली इंफिनिटी। तो ये केस हमें एक्सक्लूड करना पड़ता है। तो मुझे -2 को क्या करना पड़ेगा, एक्सक्लूड करना पड़ेगा, इसे बाहर निकालना पड़ेगा। भले ही यहाँ पे कंसिडरेशन है, लेकिन वो हमारे केस को फेल कर रहा है, ठीक है, तो इसको एक्सक्लूड करेंगे हम। एंड टू एक्सक्लूड इज व्हाट आई कैन डू सिंपली, देयर इज अ टू वे, इधर आई कुड मेक दिस, लाइक ये जो रेंज है मेरा, इसको मैं इस तरह से लिख लूँ, यूनियन, इसे मैं ओपन ब्रैकेट बना दूं, और इसे मैं क्लोज ब्रैकेट कर दूं। एक तरीका तो ये है जो मैंने आपको कल भी सिखाया था। सेकंड, अगर मैंने ऐसे लिख लिया है, तो आई कुड व्हाट डू, मैं सिंपली यहाँ पे माइनस कर दूंगा, माइनस -2, करली ब्रैकेट में लिखते हैं हम, जब भी हम कुछ माइनस वाइनस कर रहे, तो -2। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो सर सारे वे आपको आने चाहिए। गॉट इट। कैसे लिखना है, हाँ निकेश भाई, वो क्वेश्चन में लाया तो वही समझाने के लिए लाया ना, समझ रहे हो, आपको हर एक तरीका बताना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी मैं रैंडमली उठा के दे दिया क्वेश्चन। मैं समझा रहा था वो, बट ये बताना था मुझे कि ये भी सही तरीका है, ये भी सही तरीका है। तो यू कैन राइट इन इधर वे। ये तो रेंज हो गया, ये तो रेंज हो गया। नाउ आई हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू। कैसे निकालोगे, तो नंबर, लाइक इसे कैलकुलेट करना आपको आता है, हाउ टू कैलकुलेट दिस, क्लोज ब्रैकेट का, सिंपली फाइनल माइनस इनिशियल प्लस वन, फ्रॉम हियर विल गेट -5 plus 8, that is 3, three values from here in this range, because -2 is not included। चलो इसको और एक तरीका, इसको लिखने का एक और तरीका है, ये भी आप लिख सकते हो, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, बिकॉज -2 इंक्लूड नहीं है, लेकिन उसके बाद एक जो नंबर है यहाँ पे -1 तो इंक्लूड होगा ना, दैट इज -1, 2, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो अगर आपको ऑप्शंस गिवन है, रेंज पूछा है, तो ये तीनों ऑप्शंस, अगर इसमें से कोई भी एक ऑप्शन दिख रहा है, तो दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नौ एक वैल्यू यहाँ से 3 मिल गया, नेक्स्ट यहाँ से निकाल दो इसका, तो यहाँ से आप वैल्यू निकालेंगे तो आएगा फाइनल माइनस इनिशियल प्लस वन, फ्रॉम हियर यू विल गेट, दैट इज 3 plus 1, that is 4, and 4 plus 3 is 7, the total value and answer for this question is 7। so how many number of integrals, 7 number of integrals value है इसका। got it। समझा कैसे करना है।
भाई जिंदा हो, सबूत दो जिंदा होने का आपने। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको लग रहा होगा ना ये क्या बकवास कर रहा है ये, तो हाँ भाई, देख लो बकवास। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, दिख रहा है यहाँ पे, क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट, यू कैन सी हियर क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट. So these kind of question you can expect in a CAT also. That's why I'm teaching this way. And these are the question for you. You have to solve it on your pace. Okay. अभी मैं जो मेरे पास क्वेश्चन मैं बना पा रहा हूँ उससे मैं सॉल्व करवाता हूँ. So if that question you understood, let's come to the next part. Let's see how are you able to solve this one or not. क्या बच गया? क्यों मूवमेंट सोचने दो मुझे क्या बचा है. या पावर, रिमेम्बर, याद आ गया. So now again, similarly you have to find the range. Find the range and number of integral value. Let's come to the first question. ये क्वेश्चन इस तरह से है, x माइनस, ये शायद मैंने लिया हो क्वेश्चन, जो मैं मोमेंट, ये तो है ही, कि आपके होमवर्क ले, लेकिन चलो मैं कुछ अलग सा ले लेता हूँ. x माइनस 5 द स्क्वायर, x प्लस 1 द क्यूब अपॉन x to the power 4 x minus 4. This should be less than equal to 0. You have 2 minutes. अप्रोच इज सिमिलर, लास्ट में मैंने लास्ट वाला अप्रोच मैंने अभी सिखा चुका हूँ, सेम अप्रोच है. लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू एबल टू सॉल्व दिस. कुछ चेंज दिख रहा है बट उसमें और इसमें कुछ चेंजेस दिख रहा है? एनीवन, किसी को नोटिस किया हो, किसी ने नोटिस किया हो चेंज? पावर्स टूल, यू नोटिस, यू कैन सी यहाँ पे पावर आ गया. पावर हाईएस्ट मतलब उसमें भी था बट इस तरह से नहीं था. तो यह पावर इज द डिफरेंस, वही है डिफरेंस इसमें. एंड हाउ टू सॉल्व दिस ये भी बताऊंगा आपको, बट ट्राई योर सेल्फ. लेट्स सी हाउ मेनी यू एबल टू क्रैक दिस क्वेश्चन. Now, in this kind of question, when you see the power is there is the highest power, you can say more than one or two. You can see here the cube. You can see here square. So these are the power. You can see here also x to the power 4. तो ये बहुत बड़े powers हैं. These are the highest powers. You can see बड़े powers हैं. What you can do simply in this kind of question, you can simply ignore. You can simply ignore. What should ignore? क्या ignore करना? Even powers. You don't need to think about the even powers. You can directly ignore even powers. Got it? You can directly ignore even powers. अगर मैं even powers को ignore करूँ directly तो ये वाला ignore हो गया, ये भी ignore. What I left only? I left with this odd power. अब odd power देखो, यहाँ पे odd power है. अब बोलेंगे तो सर ये तो odd power है, अब इसका क्या करना? Again, this is odd. This is nothing but this. यही है ना, x square into x plus 1. Ignore this part. Just so what left, your equation is now become like this. अभी आपका इक्वेशन कैसा बन गया? आपका इक्वेशन ऐसा बन गया, x प्लस 1 अपॉन x माइनस 4. दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू 0. वाई? बिकॉज अदर थिंग यू ऑलरेडी इग्नोर्ड. आपने इग्नोर कर दिया ना बाकी चीजों को. गॉट इट? इग्नोर मतलब पूरा भूल नहीं जाना है, बट फॉर नाउ इग्नोर इट. व्हाट यू कैन डू सिंपली, दिस इज योर लाइन, नंबर लाइन. Okay, two values you got. One value is what? One value is minus 1 from here.
सेकंड वैल्यू इज +4 फ्रॉम हियर। दो वैल्यूज आपको मिल गया, दैट इज -1 +4। नाउ रेंज इज व्हाट, कैसे क्या देखना है हमें, वी हैव टू सी। ओके ऑल्सो बिकॉज ये ऑड पावर है एंड एक्स की वैल्यू देख लो यहाँ पे, यहाँ भी पॉजिटिव यहाँ भी पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली अब नीचे भी देख लेना, नीचे भी देखना है, ऐसा नहीं कि नीचे को छोड़ दो। यहाँ भी पॉजिटिव यहाँ भी पॉजिटिव, तो इट मीन्स आपकी वैल्यू कैसे स्टार्ट होंगी, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ऑल्सो यू हैव टू सी दिस वैल्यू शुड बी लेस देन जीरो और इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू जीरो, इट मीन्स लेस देन इक्वल टू जीरो मतलब आपको नेगेटिव वैल्यूज देखना है एंड दीज बोथ वैल्यू आर इंक्लूडेड, ये दोनों इंक्लूड किया है। बट देर आर सम प्री रिक्विजिट which you have to follow. What are those prerequisite? Now see the prerequisite first, उसके बाद हम रेंज लिखेंगे। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, जीरो है, तो मुझे जीरो को एलिमिनेट करना पड़ेगा बाहर, तो अगर मैं जीरो लिख दूंगा डायरेक्टली तो ये मेरी वैल्यू अनडिफाइन नॉन डिफाइन हो जाएंगी। यहाँ से मेरी वैल्यू क्या आ जा रही, 4। अगर मैं 4 यहाँ डाल दूँ तो ये वैल्यू जीरो बन जाएगा। जैसे ये जीरो बन गया तो ये मेरा पूरा वैल्यू कैसा हो गया, नॉट डिफाइन, तो मुझे 4 को भी एक्सक्लूड करना पड़ेगा। गॉट इट। अपार्ट फ्रॉम दीज टू यू कैन, आप जो भी वैल्यूज हो रख सकते हो, ठीक है, आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो इन दो को छोड़ के। अब मैंने ये वाला पावर तो इग्नोर किया था, ठीक है, ये पावर जो मैंने इग्नोर किया, यहाँ से एक वैल्यू आ रही 5 ऑल्सो, दिख रहा है 5, भले ही मैंने इग्नोर किया बट यहाँ से 5 आ रहा है ना, ठीक है, तो 5 भी मेरा एक सॉल्यूशन है। बट बिकॉज मैंने इवन पावर इग्नोर किया तो मैं ऐसा नहीं कि 5 को भी इग्नोर कर दूं, नो, 5 इज देयर वन वन ऑफ द सॉल्यूशन। -1, यहाँ भी -1 है, मतलब इससे भी -1 आएंगे, इससे 1, तो बात वही है, ऑलरेडी वी काउंटेड -1। सो अब कैसे लिखना है, अब कैसे लिखना है, यहाँ देखो, यहाँ जीरो आ जाएगा, -1 के बाद जीरो, एंड समवेयर यहाँ 4 है, यहाँ पे 3 आएगा, और 1 2 भी आ सकता है, 1 देन 2, दिस काइंड ऑफ थिंग, हियर इट इज 5। हाउ टू राइट दिस नाउ, व्हेन इट कम टू रेंज, जब मुझे रेंज लिखना हो, जब मुझे रेंज लिखना है तो मैं क्या करूंगा, सिंपली आई कुड सिंपली राइट -1 टू 4, ठीक है, दैट इज -1 कॉमा, बिकॉज -1 इंक्लूडेड है, कॉमा 4, and because 4 is my value included but I have to exclude this, minus, what I have to minus, simply 0 comma, what are the next value, 4 तो ऑलरेडी मैंने एक्सक्लूड कर ही दिया है, तो मैं सीधे से ऐसे लिख सकता हूँ, दिस इज वन वे यू शुड राइट, बट बिकॉज आई हैव टू ऐड 5 ऑल्सो, तो आई वुड ऐड हियर, दैट इज 5। समझ में आ रहा, एक तरीका तो ये है रेंज लिखने का। नेक्स्ट वे, सेकंड वे जो है इसका इस तरह से कर सकते हो, आप ऐसे कर लो, -1 टू 4 को ना लेके आपने बोले 3 तक, यहाँ से 4 अपने आप बाहर हो गया, ठीक है, बट बिकॉज -1 टू 4 है, बट यहाँ पे जीरो हमने माइनस नहीं किया, तो जीरो आप माइनस कर दो। ओके, और आई यू कुड सिंपली डू लाइक दिस, आपने -1 लिखा और जीरो को, -1 टू जीरो, जीरो एक्सक्लूड कर दिया, जैसे कि किसी ने लिखा है ग्रुप इसमें भी, चैट बॉक्स में, यू कैन सी इन चैट बॉक्स, बट आई वुड सिंपली से व्हाट, इससे बेटर है -1 यूनियन। ओके, ये ऐड नहीं करते हैं, यूनियन लिखते हैं, माय बैड, सिर्फ माइनस के लिए माइनस यूज होता है, ऐड के लिए यूनियन आता है, यूनियन, और इन करेक्ट मैनर, इस तरह से नहीं लिखा जाता है, यूनियन 5 माइनस 0, दिस इज अ करेक्ट वे टू राइट, जब भी मैंने गलत लिखा था, सॉरी। सो -1 यूनियन, ना नेक्स्ट वैल्यू शुड बी 1, हम जीरो एक्सक्लूड करना है तो 1 से लेके 3 तक, यूनियन 5, दिस इज द अनदर वे, ठीक है, तो आप बहुत तरीके से लिख सकते हो, बट आपको समझना चाहिए, आना चाहिए, समझ में आना चाहिए कैसे लिखना है। सो व्हेन यू कैलकुलेट, नाउ एक्चुअली में हमें करना क्या है, दिस इज अ रेंज, रेंज यू हैव टू राइट इन दिस वे, इन दिस वे, देयर आर मोर वेज टू राइट दिस, ओके, यू कैन फाइंड द करेक्ट वन विच एवर यू सूट टू यू, और विच एवर देयर इन ऑप्शन, आपको सब समझ में आना चाहिए, दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग। नेक्स्ट कम टू द रेंज, हो गया नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज, हाउ मेनी नंबर ऑफ वैल्यूज आर देयर, तो यहाँ से देख लो, यहाँ से 1 एक आ गया, एक वैल्यू यहाँ से मिल गया,
इस रेंज में कितने वैल्यूज है? तो फाइनल माइनस इनिशियल, 3 - 1, दैट इज 2, +1 कितना हो गया? 3, एंड दिस इज 5, दिस इज 1, टोटल हाउ मेनी वैल्यू? 5 वैल्यूज, 1 + 3 + 1, so 5 values. So the number of integral values are 5. So this is the answer. Hope you got the point. समझा? अब डाउट है किसी को यहाँ पे? अगर ये समझा है, एक क्वेश्चन सॉल्व करो सिमिलर काइंड ऑफ, लेट्स सी हाउ मेनी यू एबल टू सॉल्व। इसके बाद एक फाइनल केस है, वो करने के बाद वी आर डन विद दिस लाइक इनइक्वलिटीज। आपका कहाँ गलत हुआ ये नहीं समझा आपको, रुको बताता हूँ। आपने क्या किया है, आपने ये माइनस प्लस से चालू किया होगा। एक तो ये ऐसे कर सकते हो, माइट बी। और आपने किया क्या? सॉल्यूशन भेजो आप, आपने क्या किया है? सॉल्यूशन आप भेजो, मैं देखता हूँ। सेम किया आपने? नो, सेम नहीं किया तो अलग किया होगा। तो भाई अलग किया तो कुछ नहीं कह सकता हूँ मैं, बट दिस इज द एक्चुअल। ऐसे ही आपको करना है कैट में भी, सब कुछ नहीं चेक करना है, सिर्फ इतना चेक कर लो, काम हो जाएगा आपका। ठीक है। ओके, लेट मी गिव यू वन मोर क्वेश्चन, सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन। ट्राई दिस, अब तो आना चाहिए, अब तो बनना चाहिए वाला क्वेश्चन। ओके, सो क्वेश्चन इज, इट इज x - 3 the whole square, x + 3 the whole cube upon x - 1 to the power 4, x - 5 is less than 0. Now find the number of integral, रेंज छोड़ दो, रेंज मत निकालो, हाँ। फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज, क्योंकि रेंज तो लिख समझ ही जाओगे आप। इंटीग्रल वैल्यू बताओ। ओके, लेट्स सी। अप्रोच इज सेम, सेम चीज करना था हमें यहाँ पे भी। इवन पावर इग्नोर, यहाँ पे भी वन पावर इग्नोर, यहाँ भी वन पावर इग्नोर। इवन मतलब दो इग्नोर कर दे, एक को मैंने कंसिडर किया यहाँ पे। यहाँ से क्या आ रहा आंसर? -3। यहाँ से क्या आएगा? यहाँ से 3 आएगा, भले इग्नोर किया बट मैं निकाल ले रहा हूँ। हियर आई विल गेट 1, फ्रॉम हियर आई विल गेट 5। मुझे नंबर लाइन पे क्या रखना है? x + 3/x - 5, दिस इज द ओनली थिंग विच आई हैव टू प्लॉट। यहाँ से -3 आया है, यहाँ से 5 आया है। नंबर लाइन पे जो मेरी वैल्यूज रहेंगी, दिस आर द टू वैल्यूज, दैट इज -3, 5। अगेन मल्टी, देखो यहाँ पे सबकी वैल्यू, ये भी प्लस है, ये भी प्लस, तो यहाँ से प्लस आएगा। नीचे देख लो, ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो यहाँ से भी प्लस आएगा। तो एट द एंड प्लस ही आना है, तो प्लस से स्टार्ट करो, प्लस माइनस प्लस। ओके, नाउ लेस देन जीरो देखना है, मतलब ये माइनस वाला केस जो यहाँ पे, ये देखना है। नाउ हियर लेस देन है, -3 मान और 5 एक्सक्लूड हो गया ऑलरेडी। ठीक है, वैसे भी हमें 5 एक्सक्लूड करना ही था। 5 क्यों एक्सक्लूड करना था? यू कैन सी, अगर यहाँ 5 है, ये 0 बन जाएगा। सिमिलरली वी हैव टू एक्सक्लूड 1 ऑल्सो, तो कहीं पे 1 आएगा तो उसे भी एक्सक्लूड करना है। अपार्ट फ्रॉम दिस, 3 ऑलरेडी इन है, देखो यहाँ पे 3 कहीं पे यहाँ भी आ जाएगा, तो ये 3 भी आ रहा है, तो इसका कोई दिक्कत नहीं है। -3 वी हैव टू एक्सक्लूड इट, और 3 को भी एक्सक्लूड करना पड़ेगा। ओके, वी हैव टू एक्सक्लूड 3 ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है। गॉट इट? तो लेट्स सी क्या नंबर है। तो मतलब मेरी रेंज जो है, जो भी रेंज हो, आई डोंट केयर अबाउट रेंज। तो एक्सक्लूड, अगर -3 एक्सक्लूड तो -2 तो पक्का पक्का आ ही रहा है।
-2 से यहाँ 4 तक आएगा ही। व्हाट इज माइनस? माइनस मुझे दो वैल्यूज करना है। दैट इज व्हाट, वन इज थ्री, वन इज वन और नॉट इज थ्री। इनके बीच में जो वैल्यूज आ रही है बनेगी फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज +2 +1 विच इज 7। और ये दो वैल्यू माइनस कर दो यहाँ से, तो कितना आ गया? 5। सो आंसर फॉर दिस इज 5। होप यू गॉट हाउ टू सॉल्व दिस। जब भी ऐसा आए क्वेश्चन, आपको इस तरह से ही सॉल्व करना है, ठीक है? देर इज नो अदर वे, यू हैव टू कैलकुलेट इन सेम मैनर। हियर ऑल्सो ये भी सेम है, वैसे ही करना है। देखो यहाँ भी इस केस में भी वैसे ही करना है आपको। सिंपली वहां पे डिवाइड वाला लिया मैंने समझाने के लिए कि बेटर होगा, सब कुछ एक साथ समझ जाएगा। यहाँ पे डिवाइड में नहीं है, स्टिल यू कैन इग्नोर दिस। सिंपली योर क्वेश्चन इज ओनली दिस, ओके? यू कैन इग्नोर -5, बट एट द एंड ऐड कर लेना अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, ठीक है? हम पहले इग्नोर करते हैं, बट एट द एंड में उसे चेक करते हैं। यहाँ भी यू कैन सी, यू हैव टू इग्नोर, सिंपली इग्नोर दिस। दिस इज इग्नोर। यहाँ से भी दो वैल्यू इग्नोर कर दो, बचा क्या? x-3, x+4। दिस इज वॉट योर क्वेश्चन लेफ्ट, ठीक है? तो तरीका यही है, बट एट द एंड इसको देख लेना, आखिरी में देखना है। मैं याद देखो, मैं हर बार बोल रहा हूँ, एट द एंड यू हैव टू चेक क्यों एक्सक्लूड करना या इंक्लूड करना। दिस वन इज सिमिलर, यू कैन सॉल्व। दिस इज ऑल्सो सिमिलर वन, you can solve in your own pace. We'll share this sheet right now, okay? And before we close the session, I told you एक और मतलब तरीका, एक और बचा है वे। दिस इज अ सिमिलर क्वेश्चन, बस यहाँ पे आपको हाउ मेनी इंटीग्रल वैल्यू पूछा है, के कितने वैल्यूज आएंगे। देखो ये यहाँ बता दे रहा हूँ ऊपर ऊपर से। हाउ मेनी इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के वुड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव रियल रूट्स? रियल रूट से मतलब क्या बोल रहा है? सिंपली डी शुड बी greater than equal to 0, then only the roots are real। d की वैल्यू जो होंगी वहां से k की वैल्यूज बन जाएगा, यहाँ से k का रेंज बनेगा, ओके? b² - 4ac में अगर आप वैल्यू डाल दोगे, b² - 4ac में, यहाँ से आपको एक नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। इसका रेंज आपको निकालना है, और जो भी रेंज होगा दैट इज योर आंसर। मतलब ऐसे आंसर टू नहीं है, जो भी होगा आंसर वहाँ पे मार्क कर देना, ओके? दिस वन इज अ सिमिलर वन। Again, here also, what you have to do, if a, b are the integers such that this equation is greater than 0, this equation is greater than equal to 0 for real number of x, then the largest possible value of this। तो ट्राई करना, बाकी मैं नेक्स्ट सेशन में करवाऊंगा ही आपको। हियर इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, अगर ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाए, अब क्या करना है? इस टाइप के क्वेश्चन में आपको सिंपली यू हैव टू फर्स्ट सॉल्व एंड अरेंज दिस, क्योंकि अरेंज नहीं है। तो कैसे अरेंज करोगे? तो अब बहुत से होशियार लोग इसको सीधे यहाँ से डिवीजन से यहाँ भेज देंगे, ठीक है? कि चलो भाई तू डिवाइड में इधर जा, मल्टीप्लाई में चले जा। कर सकते हो, नो वरीज, अच्छी बात है, ट्राई अच्छा है वो। बट वैसा मत करना, वैसा ना करना। यहाँ पे क्या करना, यहाँ पे जो टू है ना, इसको यहाँ ला लेना। यहाँ प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। दिस शुड बी लेस देन 0। सॉल्व कर लो, इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, सॉल्व होगा तो दिस शुड बी 2 × x-2, ठीक है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया मैंने इसका। हियर denominator will get x-2, this should be less than 0। When you solve it further, you will get that is 2x plus 4, so and upon x-2, this should be less than 0। After a further solving, you will get -2x plus 5 upon x-2, this should be less than equal to 0। अब इसके जो है रेंज आपको निकालना है, वही आपको बताना है, उस वहीं से फाइंड मिलेगा आपको नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज। यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस इन दिस वे। ये इज द सेम क्वेश्चन सिमिलर। आप भेज दो टू को इधर, प्लस में है, इधर में आएगा माइनस हो जाएगा। सॉल्व करो, रेंज बताओ, और वहां से आंसर आ गया। सॉल्व फॉर एक्स है, मतलब यहाँ पे आपको इंटीग्रल वैल्यूज बताना है, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज, ठीक है? और रेंज भी निकाल देना, अच्छी बात है। दिस इज अ सिमिलर क्वेश्चन, यू कैन सॉल्व। अभी जो मैं करवा रहा हूँ, ओके, ऑलमोस्ट डन। तो ये सारे क्वेश्चन होमवर्क है। अभी मैं एक टाइप करवाऊंगा, सिर्फ एक एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे फ्रॉम माय साइड। और शायद अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूँ अभी सॉल्व करने,
देन वी आर डन विद इनइक्वालिटीज, हमने सब कुछ कवर कर लिया इनइक्वालिटीज का। जस्ट गिव मी मोमेंट, लेट मी चेक द क्वेश्चन। इससे ऊपर कैट में कुछ नहीं पूछता है, इनइक्वालिटीज इतना ही जो भी है। ओके, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। Here also you have to find the range and number of integral solution। इंटीग्रल सॉल्यूशन को या फिर इंटीग्रल वैल्यूज, बात वही है। नाउ सी, द क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 24 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 इज लेस देन 0, सॉरी लेस देन 4। अभी जस्ट मैंने बताया कैसे सॉल्व करना है। द फर्स्ट स्टेप यू हैव टू डू, इस 4 को यहाँ ला लो, ठीक है। इस 4 को यहाँ ला लो, यहाँ प्लस से यहाँ जाके माइनस हो जाएगा। दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 24 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 माइनस 4, दिस शुड बी लेस देन 0, ठीक है। नाउ इफ दिस इज लेस देन 0, नाउ सॉल्व इट। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर दो तो यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 24 माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3x plus 3, this should be less than 0. Solving further, you will get equation like this, x square minus 3x plus 24। बिकॉज यहाँ माइनस साइन है और 4 है, मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, माइनस 4x स्क्वायर, अगेन माइनस माइनस प्लस, 4 3 ज़ा 12x, माइनस प्लस माइनस, 3 4 ज़ा 12 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 इज लेस देन 0, ठीक है। इसको थोड़ा अच्छे से अरेंज कर दो तो आपका इक्वेशन एट द एंड ये बचा है, दैट इज एक्स, दिस एक्स स्क्वायर, दिस इज माइनस 4x स्क्वायर, इट मीन्स माइनस 3x स्क्वायर, माइनस 3x प्लस 12x मतलब प्लस 9x, प्लस 24 माइनस 12 मीन्स प्लस 12 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 लेस देन 0। तो ये सारा आप अच्छे से सॉल्व कर लोगे तो आपको एट द एंड ये मिलेगा। फिर इसके बाद क्या करना है, अब इसके यहाँ से वैल्यूज निकाल लो। तो अगर मैं पहले वाले की इक्वेशन की बात करूँ, इसके वैल्यूज क्या आएंगे, तो इन दिस इक्वेशन जो न्यूमरेटर में उसकी इक्वेशन की अगर बात करूँ, तो हियर आई विल गेट वैल्यूज लाइक 3 × 36 हो गया, माइनस 36 को आई हैव टू डिवाइड इन सच ए वे सो दैट आई विल गेट 9। तो द वैल्यू इज 12 3 ज़ा itself, yes, 12 3 ज़ा itself a value, okay, but I have to give here plus 9, तो प्लस 12 माइनस 3, तो यहाँ से दो, एंड ऑल्सो डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो डिवाइड करो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से विल गेट दिस वैल्यू दैट इज माइनस 3 अपॉन माइनस 3। यहाँ से मिल रहा है आपको -4, यहाँ से मिल गया 1, अगेन चेंज द साइन, तो यहाँ मिल गया 4 और -1, तो जो आपकी जो वैल्यूज है यहाँ से क्या है, 4 और -1। सिमिलरली ये तो यहाँ से आपने निकाल लिया, नीचे वाले टर्म का देखो, आर यू एबल टू सॉल्व दिस, क्या ये सॉल्व हो पाएंगे आपसे, डिवाइड तो मैं नहीं कर पाऊंगा,
तो इन दिस केस अगर आप इसको दो भाग में तोड़ नहीं पा रहे हो ना, तो एक क्विक टेस्ट कर लेना फट से। क्विक टेस्ट इज व्हाट? डी की वैल्यू निकाल लेना एंड चेक कि डी की वैल्यू क्या आ रही है। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर इज थ्री का माइनस थ्री का स्क्वायर दैट इज नाइन, माइनस फोर ए सी, थ्री फोर आर 12, सो द वैल्यू इज माइनस थ्री। माइनस थ्री आ रहा है, मतलब यहाँ से जो मेरे रूट्स मिलेंगे, इस इक्वेशन से जो भी मेरे रूट्स मिलेंगे, रूट्स कैसे हो गए? रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। अगर रूट्स कॉम्प्लेक्स है तो मैं इसे सॉल्व ही नहीं कर पाऊंगा भाई। ये तो खत्म हो गया केस, मतलब रूट्स तो कॉम्प्लेक्स आ गया। क्या करना मतलब इस केस में? डरना नहीं है। रूट्स अगर कॉम्प्लेक्स आ रहा ना, सिंपल, अभी जस्ट सिखा एक मैंने। अगर पावर इवन है तो इग्नोर कर दो, वैसे ही अगर रूट्स कॉम्प्लेक्स है, इग्नोर। खत्म बात, इसको तो पूछना भी नहीं है। उसमें तो आपको देखना भी है ना, इसमें तो सोचना भी नहीं, देखना भी नहीं है। सीधा जैसे ही आपको दिखा कि दैट इफ द रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, यू हैव टू सिंपली इग्नोर। नॉट ओनली इग्नोर, ओके, इग्नोर की स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ मैं। नॉट ओनली इग्नोर, इग्नोर सिर्फ नहीं करना है, उसको सीधा सीधा उठा के बाहर फेंक देना है, सीधे सीधे एलिमिनेट कर दो। समझो कि वो क्वेश्चन वो ऑप्शन में है ही नहीं, मतलब वो क्वेश्चन में है ही नहीं वो पार्ट। गॉट द पॉइंट? उसे क्या समझना है, वो क्वेश्चन ऑप्शन में मतलब क्वेश्चन में है ही नहीं। अगर वो क्वेश्चन में नहीं है तो आपको क्वेश्चन क्या बचा? तो ये मैं मिटा रहा हूँ यहाँ से। तो आपका क्वेश्चन सिर्फ यही बचा है, इतना सा। आपका क्वेश्चन क्या बचा है? इतना सा। माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स प्लस ट्वेल्व इज लेस देन जीरो, दिस इज वॉट योर क्वेश्चन लेफ्ट। ना इसका रेंज जो भी है, दो वैल्यूज हमने निकाल चुके हैं, एक है माइनस वन और एक है फोर। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज चेक कर लो क्या क्या आएंगी। सो माइनस वन एंड फोर, मैंने सी दिस नॉट इक्वल टू नहीं है, तो यहाँ पे मेरी वैल्यूज आएंगे जीरो टू थ्री इंक्लूडेड, टोटल वैल्यूज आर फोर। तो आंसर फॉर दिस इज फोर। गॉट इट? इसे क्वेश्चन क्या था ये? हम्म, ठीक है, और रेंज क्या बनेगा अगर रेंज पूछ लिया किसी ने तो? व्हाट शुड बी रेंज, क्योंकि मैं रेंज भी लिखा हूँ। रेंज सिंपल है, रेंज इज वेरी सिंपल। आपको कॉम्प्लेक्स को तो देखना ही नहीं है ना, कॉम्प्लेक्स को तो सीधा डिलीट कर देना ना केस से। क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्स दिखा सीधा काट देना, बट ऐसे सीधा मत काटना। ऐसा क्वेश्चन है तो पहले सॉल्व करना। ऐसा बनाने के बाद लेस देन इक्वल टू जीरो, फर्स्ट यू हैव टू मेक दिस लेस देन इक्वल टू जीरो, देन एलिमिनेट। सो द रेंज इज हियर, द रेंज इज वेरी सिंपल, माइनस वन टू फोर, दैट्स इट। माइनस इंफिनिटी टू माइनस वन यूनियन वाई सो? क्यों मैं मोमेंट मैं, अच्छा मैं वो भूल गया, सॉरी माय बैड। यू हैव टू कैलकुलेट प्लस माइनस। ये ध्यान देना है, मतलब एलिमेंट के चक्कर में वो मत भूल जाना। दिस इज नंबर ऑफ, क्या पूछा है यहाँ पे? लेस देन जीरो। ओके, लेस देन जीरो कहाँ है? ये यहाँ पे लेस देन जीरो है, माइनस देखना है, माइनस वाला केस। तो जो आपका रेंज बनेगा, द रेंज शुड बी माइनस इंफिनिटी कॉमा वन यूनियन फोर कॉमा इंफिनिटी, दिस शुड बी योर रेंज। और इंटीग्रल सॉल्यूशन की बात करो तो भाई इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन में नहीं रहना चाहिए, यहाँ निकाल नहीं सकते। एंड रेंज ही था एक्चुअल क्वेश्चन, मैंने ये डाल दिया था, तो इट्स माय मिस्टेक। तो अगर इनफाइनाइट अगर पूछ भी ले किसी ने कि हाउ मेनी इंटीग्रल सॉल्यूशन वैल्यूज, इनफाइनाइट वैल्यूज, दिस इज योर आंसर।
गॉट इट। कूल। समझा पूरा क्या करना है। तो टुडे व्हाट वी लर्न इन टुडेस सेशन द फाइनल वन, हमने क्या क्या सीखा। एक बार रिकैप दे दूं मैं शॉर्ट में। हमने दो टॉपिक आज किए। मैक्सिमम रिकॉर्डेड वीडियो, मैक्सिमम रिकॉर्डेड वीडियो, विच वन मैक्सिमम, मैं खुद भूल गया मेरे को। Graph. Okay, graph one, graph. Okay. So yeah, graph. I haven't recorded it because after the modelers will add those like a session of graph, because there are some graphs which are related to modelers too. There are one or two graphs. So I will add those two. So you can understand after when we once we complete modelers part. So I will add after the modelers. Okay. So right now let's see what we had learned today. The first one is that is even power. Even power इसका हमने देखा है। सेकेंड वन इज कॉम्प्लेक्स। इवन पावर है इग्नोर। इग्नोर, ओके। इग्नोर करना है बट हैव टू कंसिडर एट द एंड। हैव टू कंसिडर एट द एंड। नहीं तो अगर भूल गए तो भाई नेगेटिव मतलब मार्क्स चले गए आपके। कॉम्प्लेक्स, व्हेन इट कम टू कॉम्प्लेक्स एलिमिनेट डायरेक्टली। एलिमिनेट एंड नो नीड टू चेक। ओके। बट बट एक तो हमने ये पढ़ा, एक ये पढ़ा। बट कॉम्प्लेक्स मतलब ऐसा नहीं कि हमारा जब इक्वेशन था, व्हाट इज द आर इक्वेशन राइट नाउ। इक्वेशन इज लाइक दिस, इस तरह से था ना। एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस 24 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री इज लेस देन फोर, राइट। सो इग्नोर तो एलिमिनेट करना, यू हैव टू एलिमिनेट दिस, बट once you have to make this value first zero, then after then you can eliminate। अगर आपने ऐसा कर दिया कि ये एलिमिनेट कर दिया, अगर सर ने तो बोला एलिमिनेट करो, तो आपने सीधा किया इसे एलिमिनेट, और आपने बोल दिया ये है क्वेश्चन। You will say this is the question, still you will get a wrong answer। Okay, so ये याद रखना, be careful। And yeah, with this we have completed all the types of question of inequalities. Rest all depends on your practice. So you can do one more thing. If you like some of you do volunteer work for me, what you can do from 2015 to 2023, you can collect all the question from inequalities and share with me। We'll provide you a video solution for the same if you want। बाकी तो बहुत मिल जाएंगे आपको, right? So if you want, you can collect all the inequalities question from this and share with me। So it will be going to helpful to me also and for you also। आपको solution मिल जाएगा और मुझे क्वेश्चन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Got it? So this is what, if you want you can चुपचाप उठाओ दे दो मुझे डीएम में, सारे क्वेश्चन एक जगह एक पीडीएफ में कंपाइल करके you can just share with me if you want the solution। Okay, similar for the other topics too। If you want solution for, let's say, quadratics, you can share simply quadratics questions। Cool, समझे? So yeah, we are done with inequalities। Next session was modulus। And do let just give me a moment, let me share this pdf with you first। जो भी यहाँ पे है, रुक जाओ एक मिनट, पीडीएफ लेके जाओ। Yeah, we are done with the session and let's come to the next session। Next session was modulus and we will see more about some detail about। And yeah, if you are watching the recording and want to join modulus live, recording कर लो पहले। Also guys जो live में भी है, you have 2 days, क्योंकि 2 दिन बाद modulus चालू होगा। 2 days, 2 days में you have to revise all the quadratic
इनइक्वालिटीज एंड हायर ऑर्डर ऑल्सो, हायर ऑर्डर भी और लीनियर भी, ये सारे रिवाइज कर लो, क्योंकि सब अच्छे से आएगा तो ये समझ पाओगे। बाकी इनइक्वालिटी तो पक्का है, ये तो करके आना, इनइक्वालिटी एंड क्वाड्रेटिक। ओके, विश ऑल देयर बेस्ट। जय सिया राम।